Friends, so today we will discuss the election disputes. So, what does it mean? It means that whatever elections we have on in India on constitutional posts, so those posts which are filled by election. So, if any dispute arise related to election of those posts, so to whom the appeal lies to, which court or to which authority, we'll discuss today. That is actually very important because in prelims, basically, consider the following statements. May there comes a single statement. There comes multiple statements, but there is a statement in which there is a statement written like related to this election disputes, like election disputes related to the election of member of parliament are to be catered by or are to be tried by by the high court or by supreme court alone. So 1 and 2 are false, 1 is true, 2 is true, none. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So so we'll see today to which authority the appeal lies to the appeal lies to which authority which are related to disputes arising out of election of any constitutional authority. So we will see this point today. So for election related to parliament state legislature, यानी कोई एमपी चुन के आता है, कोई एमएलए चुन के आता है या एमएलसी आप कह सकते हैं, तो कोई भी चुन के आता है अगर तो पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 323 पार्लियामेंट एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना सकता है. 323 को विजिट कीजिए आप, तो आपको पता लगेगा कि उसमें साफ साफ लिखा है इलेक्शंस रिलेटेड टू मेंबर ऑफ टू इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट and state legislature. So parliament can establish a tribunal, but since no tribunal has been established by parliament so far, so election disputes related to member of parliament, MLAs, including prime minister, including chief minister, including speaker of Lok Sabha, because all these constitutional authorities are elected, so they are taken by respective high court and appeal lies against it can be made in supreme court. तो पहले आपको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, बट हाई कोर्ट में आपको जाना होगा अगर इनसे रिलेटेड. सो एनी इलेक्शन डिस्प्यूट विच अराइज आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ मिनिस्टर, सो अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट. सो यू हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट related to election disputes for election dispute related to these constitutional authorities. An appeal against that high court decision, you can then go to supreme court. Very important. So election disputes which are related to president vice president are settled by only supreme court. So vice president या president के लिए, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में नहीं जाना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना है. हाई कोर्ट डज नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन दिस रिगार्ड. सो यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है उनके इलेक्शंस के लिए. सो नो इलेक्शन टू एनी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन. सो यू हैव टू प्रेजेंट एन इलेक्शन पिटीशन टू सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस. तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा और उस कानून के तहत वो जिस अथॉरिटी के समक्ष पॉइंट उसमें रखेगा कि किस अथॉरिटी के अगेंस्ट के समक्ष आपको इलेक्शन डिस्प्यूट रेज करना है, या जो अथॉरिटी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी या विच एक्ट्स एज अ कोर्ट. सो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू मेक अ लॉ एंड you have to present an election petition in front of such authority which state legislature determines, as determined, or you can say as determined by the state legislature. So no election to any panchayat or municipalities is to be questioned. You cannot question except by an election petition presented to such authority in such manner as the state legislature determines. तो जनरली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, जिले में जो कोर्ट होती है, जिस जिले का पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है, आप वहां पे अपील कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं. या फिर आपको ग्राम ये जो ये जो कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनमें आपको अपील करना होगा, बट स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा. तो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपील की जा सकती है या फिर ग्राम पंचायत में भी कर सकते हैं. फिर ग्राम पंचायत की अपील आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट.
ठीक है। तो ये सब केसेस के लिए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, और स्टेट लेजिस्लेचर जनरली जो नीचे की लेवल की अदालतें होती हैं उसमें अपील आप कर सकते हैं इनके रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए। सो दिस इज the lecture which is related to election disputes which are arising out of the election of MP, MLA, MLC, president, vice president, governor के लिए high court, again governor, for election of governor, but governor is not elected, governor is appointed, so उसके लिए कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन अगर किसी का इलेक्शन हो रहा हो, जैसे पंचायत म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन होता है, आप MP MLA को चुनते हैं, आप MLC के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपको रेस्पेक्टिव कोर्ट में अपील करनी होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अनदर important इंडियन पॉलिटी टॉपिक। टिल देन, thank you very much and kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon and notification button. Thank you very much.